ठीक है, रेडी हो आप लोग? हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योमा मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हम ब्लॉग एंड कर देते हैं। भाई लोग, আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যতটুকু এডিট করি, স্টোরি টেলিং করি, সিনেম্যাটিক শট দেখাই, যা কিছু সব কিছু তো নিজে থেকে তো করা সম্ভব হয় না, সব কিছু তো আর এখান থেকে আসে না। কিন্তু ক্রিয়েটিভিটিটা এমন একটা জিনিস কিন্তু বারুদের মতন, আগুন না দিলে কিন্তু ঠিক জ্বলে না। সেটা মন ভাঙাও হতে পারে বা কারোর কাছ থেকে শিখে ইন্সপায়ারও হওয়া হতে পারে। বেশি কথা বলবো না, জাস্ট একটা কথাই বলবো। আজ 18ই মার্চ 2023। আজকে আমি তোমাদেরকে এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় করাবো যার কাছ থেকে আমি আমার ইউটিউব জার্নির যা যা বললাম একটু আগে সব কিছু শিখেছি। তিনি আমার কাছে অনেকটা বড় একটা ব্যক্তিত্ব, অনেকে চিনবে অনেকে চিনবে না। তো আমি কার কথা বলছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে। আজকে এই ব্লগটা টোটালি তার নামে বা তার জন্য ওনাকেই ডেডিকেট করলাম। ওকে, তার আগে হ্যালো ইউটিউব ফ্যামিলি, ক্যাসে ও সারে, মাইসেলফ বদ্দা ইন ব্র্যাকেট অনিদা। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব ফ্যামিলি বদ্দা অনি ব্লগ। চলো ভাই লোক, বেশি কথা না বাড়িয়ে ব্লগটা শুরু করে দিই। সকাল সকালই উঠে গেলাম এবং কলকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সাথে যাবে আমার বন্ধু সুমন। একটা কথা বলি, আমি ওনার কথা সুমনের কাছ থেকেই প্রথম শুনেছিলাম। যাই হোক, সুমনের সাথে চলে গেলাম মসলন্দপুর স্টেশন। আমাদের বসিরহাট টু শিয়ালদা লাইনে ট্রেন একটু কম থাকে, যার জন্য আমরা ডিসাইড করলাম আমরা মসলন্দপুর দিক থেকেই যাবো। অ্যান্ড এটা যে কতটা গুড ডিসিশন নিয়েছিলাম সেটা আমরা তখনও বুঝতে পারিনি। একটা কথা এখন বলে দিচ্ছি ভাই লোক, সর্বদাই তো ভগবান সবার সহায় থাকে, বাট আজকের দিনটা একটু বেশি সহায় ছিল আমাদের। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before. যাই হোক, চলে গেলাম মসলন্দপুর স্টেশনে। 12টা ট্রেন, এখন 12টাই বাজে। এই যে আমরা স্টেশন উঠছি, ট্রেনও ঢুকছে। ট্রেনে উঠি তাহলে। মসলন্দপুর লোকালে মানে বনগা লোকালে ঠিক পাওয়া, এটা কিন্তু মুখের কথা নাকি অসময় তো, ওই জন্য এই ট্রেনটা মিস করলে আমাদের 1 ঘন্টা ওয়েট করতে হতো। এর জন্য ওই যে মিস যাই হোক, দমদম ঢুকছে ভাই লোক, এবার আমাদের নামার পালা। আমার একটা পার্সোনাল কাজের জন্য আমাদেরকে মেট্রো গলিতে যেতে হতো। সেই গল্পটা আমি তোমাদেরকে আর কিছুদিন পরে দেখাবো। আমাদের কিছু জিনিসপত্র কেনার ছিল, ট্রাইপড, একটা লাইট, সুমনে একটা জিনিস কেনার ছিল। তো সেগুলোর জন্য আমরা একটু মেট্রো গলি গেলাম, ফটোগ্রাফিতে গেলাম। বাট ওরা না যা দাম বলছে ওনাদের একটু হাইফাই হয়ে গেছে। এস ফটোগ্রাফি ওখানে গেলাম, ওখান থেকে আমরা দেখো ভাই লোক এইগুলো কিনলাম। সমস্ত কিছু ব্লগ তোমরা পরে পাবে। এর মধ্যে একটা কথা বলে রাখি, যার সাথে আজকে মিট আপের কথা, তিনি কিন্তু 4টের সময় টাইম দিয়েছিলেন। যখন আমরা দমদমে নামলাম, এখন 4টে বাজে, এখন আমরা দমদম জংশনে খাওয়া হোক একটু। আচ্ছা, কথা হচ্ছে এখন তো 4টে বেজে গেছে, তাই আমি আগে থেকে চলে যাচ্ছি এমএসকে ভাইকে দেখতে। আর সুমন এখান থেকে ব্যারাকপুরে যাচ্ছে, ডেলিভারিটা দিতে হবে আজকে। বাট হয় না, যেটা হওয়া সেটা হয়েই যায়। সুমনও যেতে পারলো না কোনো একটা কারণের জন্য, ও সেম ট্রেনে উঠলো। এটা দেখতে পাচ্ছ, এই দড়ি ছিঁড়ে গেছে। তবে এই ঘটনা পরে বলছি আমি। এই যে সুমনও এসেছে, সুমনও যায়নি ওর কাজের জন্য ওখানে। এমএসকে ভাই আগে এত ভিড় ছিল ভাই লোক, দেখতে হচ্ছে মুখ চলে হাত। সিফ এমএসকে ভাই আপকে লিয়ে ওনার জন্যই করছি। অন্য কেউ হলে যে ভালো কাজ করে, মদত আগে ভালোবাসে, আগে রেসপেক্ট করে। এমএসকে ভাই লেট করে, বাট আমরা ওর থেকে বেশি লেট করছি। যা যাক, আচ্ছা না আমি জানি, কিন্তু কাকা যে আসে কাকা সে বোম্বাই থেকে আসছে। কাকা একটু দেখো কাকা, ওরে 10 টাকা বেশি দিলি তুমি যাবা? ও তাহলে তুমি আমি বলিনি তো এখনো। হ্যাঁ বলিনি, মানে আমি তোমাকে বললাম আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালোবেসে চেয়ে যাও তো 50 টাকা দেওয়া নেই। ঠিক আছে ভাই लोग, আমরা এই টোটোয় उठेছি। आप रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं भाई, लेकिन हम लोग जाएंगे। कट्टा एमएस के हम लोग, और ये है वो जिसने मुझे कट्टा एमएस के बनाया। তো এই যে আমরা এসে গেছি, ইভেন্টে এটাও মনে এসেছে। এই তো ব্লগার বাবুর বাইক কোথায় হচ্ছে আমাদের এ ভালো, আমরা একটু খুঁজে নেই। হ্যাঁ, গাড়িতে করে দেখছিলাম ও এসেছে মনে। হ্যাঁ, এই সিম কেমন হয়ে যাবে না। ব্লগটা একটু অন্যভাবে করবো বলেছিলাম, বাট একটু তাড়াতাড়ি ছাড়ারও প্রয়োজন ছিল। আমার ইমোশনটা তোমরা এক কথায় বুঝে নাও। আমরা তো জানি না অডিটোরিয়াম হলে কোন ফ্লোরে হচ্ছিল। পাশে একটা কাকা বললো, তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে আমরা তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে দরজাটা টানলাম। সামনে যে ব্যক্তিত্বটা দাঁড়িয়েছিল তার জন্যে কি নিজের মনের মধ্যে প্রচন্ড আবেগ ছিল, তার জন্য কি জানি না, দরজাটা যেন শুধু দরজা ছিল না, স্বপ্নের দরজা ছিল। ওই 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমি কল্পনার জগতে চলে গেলাম ভাই লোক। যাকে দেখে আমার ইউটিউবে আসা, যাকে দেখে আমার ইউটিউবে এডিটিং
কুকিং শেখা, তার সমস্ত ভিডিও নিজে ওয়াচ লেটার প্লেলিস্টের মধ্যে সেভ করে রাখা, প্রতিটা ভিডিও ব্যাক স্কিপ করে দেখা, সেই ব্যক্তিত্বটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের মানুষ MSK ভাইয়া। অলরেডি আমার তখন হাত পা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। দরজাটা খুললাম, আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি প্রবেশ করলাম অ্যান্ড আমি যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। বাদ বাকি যা হয়েছে আমার সাথে, আমার বিশ্বাস ওগুলো একটাও বাস্তবে হয়নি, ওগুলো সব কিছু স্বপ্ন হয়নি। আমি যেন সেই ভালো স্বপ্নটাই দেখছিলাম। উনি আমার ভালো স্বপ্নের মতো, হি ইজ মাই গুড ড্রিম। এবারে গল্প তোমরা ডিরেক্ট দেখো, আমার থাবড়া নাক আমি আর গলাচ্ছি না, পরে গলাবো। हैदराबाद के हमारे सब्सक्राइबर रुक ही नहीं रहे थे। कैमरा दाओ ना, कैमरा भाई भाई आप लोग जो हो सबके तरफ से हम लोग का छोटा सा एक वेलकम है। सब कोई cheer करो MSK। ये इधर भाई लोग कौन कौन चाहता था कि मेरी शादी हो जाए? दूल्हा लग रहा है कि नहीं? ভীষণ ফ্যান ফলোয়িং, ভীষণ ফ্যান ফলোয়িং, মানে বিশ্বাস হচ্ছে না আমি লোকটাকে দেখছি। इनमें वो वाली बात नहीं रही, पहले वाली बात नहीं रही। एक बार और कोशिश करना। कैसे हो? खूब भालो, दारुण भालो, खूब भालो। কেমন আছো? गर्मी बढ़ गई है यार। अच्छा, हम लोगों के सबकी तरफ से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है? पहला आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कोलकाता आके कैसा लगा आपको? कोलकाता मैं पहले भी आ चुका। अपन पहले धंधे वाला था, पहले अपन बिजनेस करता था, तो बिजनेस के सिलसिले में मैं 2-3 बार आया हूँ। और जब भी मैं आया हूँ पार्क स्ट्रीट में रुका हूँ। पार्क स्ट्रीट में एक KFC हुआ करता था। मेरे को यहाँ का ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं KFC में जाता था, चुपचाप खाता था। तो एक दिन मैंने सोचा कि बहुत पक गया हूँ, एक दूसरी गली लेता हूँ। तो एक जगह कहीं तो मैं पहुँच गया चलते चलते, और वहाँ पर जो मैंने खाना खाया मेरे को आज तक याद है, वो बहुत 30 रुपये का खाना था। 30 रुपये में उन्होंने कुछ तो मेरे को दिया था, चावल के साथ मछली सारे से खाया, बड़ा मजा आया। तो वो मेरा कोलकाता का पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद सबको पता ही होगा कि मेरी मॉम जो है वो वेस्ट बंगाल से ही है, तो हम ही आधा बंगाली। तो जब भी हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी, हम लोग गांव में जाते थे। नानी बाड़ी गाँव करके हमारा नानी बाड़ी हो जाता था। लेकिन नानी, नाना, मामा बाड़ी, मामी बाड़ी, जो भी हमारा 3 दिन लगता था। गुवाहाटी एक्सप्रेस एक ट्रेन होती थी, असम में गुवाहाटी, तो गुवाहाटी एक्सप्रेस था। तो गुवाहाटी एक्सप्रेस से हम लोग मतलब पकड़ते थे वो, और वहाँ से फिर सीधा हम मालदा पहुँचते थे। मालदा से फिर हम लोग को बस पकड़ने, वहाँ से मेरे ख्याल से मतलब ऐसे होता था, मतलब 3-4 ट्रांसपोर्टेशन मोड चेंज करके जाना पड़ता था। वो जाने वाला जो जर्नी होता था बहुत ही पकाऊ होता था, लेकिन जब एक बार पहुँच जाते तो फिर मजा आता था, क्योंकि वहाँ पर फिर पोखूर है। मछली पकड़ना, जो भी तो ये सब। तो जब भी मैं कोलकाता आता हूँ तो अपना सा तो लगता ही है, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी फ़ोन पे बात करती है, अगर उनको वेस्ट बंगाल अपने खाला से बात करना होता है तो वो हमेशा बंगाली में बात करती है, तो मेरे घर में वो फील रहता है।
वो बंगाल का और कर्नाटका का फील हमेशा मिलता है। ठीक है, जब भी गांव से कॉल आता है या तो डैड बात करेंगे या तो फिर मॉम बात करेंगे। डैड बात करेंगे तो कन्नड़ा में बात करेंगे, कन्नड़ा एक्चुअली एक बिहारी भाषा है वहाँ पर लोकल, तो उसमें बात करते थे और मॉम बंगाली में। तो मेरे को हमेशा से मतलब ऐसा है कि अगर मैं कर्नाटका जाऊँ या फिर बंगाल आऊँ तो मेरे लिए वो घर वाला फील होता है। क्योंकि महाराष्ट्र में मैं पढ़ा वाला हूँ, है ना, तो अभी जो आप जो सोचते हो वो निकलता है। जब ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है? वो अपना निकलता है मराठी में। चलो ठीक है, बस इतना था हमारा एक्सपीरियंस। और भी मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस, बट मेरा ये हिस्ट्री रहा है। मतलब मैं रात को नहीं हुआ था, टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, आरएसी में था, तो टीसी आया था तो उसने बोला कि 3rd ईयर में एक जगह है सबसे ऊपर वाला, मैंने बोला दे दो, पैर खोदने चाहिए मेरे को, पैर अगड़ जाएगा, नींद ले लूंगा तो क्या अगले दिन का फिर काम कर सकता हूँ। तो मैं उधर सो गया और सुबह सुबह उठा, मतलब नींद में ही था, और जैसे मैं बाहर निकला और मैं सब सेट वेट कर रहा था, बाल वाल और ये सब आ गए और धीरज आ गया और सामने सब खड़े थे, अब क्या करें। तो फिर मतलब अच्छा था, बहुत टाइम बाद आया, वो नॉर्मल है। ठीक है, सुंदर था। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? हम लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, अभी मेरे को बोले इंडियन हेरिटेज सागा, एक हमने अपना सपना शुरू किया था जो कि टूट गया, लेकिन हमने कहा कि ये टूटे हुए सपने जो है टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ेंगे, बराबर। तो जोड़ जोड़ के हम लोगों ने जब शुरू किया था ना, तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 10 साइड किया था, 10, 11 इतना। अभी हम लोगों ने कितना किया है? 18, 70, वो अगर वैल्यू ऑफ नंबर ऐड करूंगा 18 हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 18 कंप्लीट किया है 40 में से। तो कितना बचा अभी? और बस देखते देखते हो जाएगा, जब हो जाएगा तो बोलूंगा कि सपना पूरा हो गया। लेकिन कभी भी कोई भी चीज करने के निकलो ना, अगर ऐसा लग रहा है कि आप हार गए हो, छोड़ो मत, कंटिन्यूसली लगे रहो, कभी ना कभी तो होगा। जो जीत के जीतता है उसको क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन जो हार के जीतता है उसको पता। বল হাতে কি মনে হচ্ছে? আজ থেকে আমার ক্যামেরার লেন্স কাঁপছে, হাতে ধরতেই পারছি না। সিরিয়াসলি বলছি, আমাদের ভীষণ ইমোশন, মানে পরে বলবো ভালো করে, বাট যতটা যা শিখেছি সব ওনার থেকে শিখেছি। ঠিক আছে, বিশাল বড় একটা জায়গা, কিছু বলতে পারছি না ভালো, জাস্ট ইমোশনটা বুঝে নিও। আসুক আবার 5 মিনিট ব্রেক। আমি আর সুমন এখানে বসে রয়েছি, দাদা এখন এমএসকে ভাই এখন গিয়েছে ভিতরে, এসব গান দিচ্ছে বলে ব্লগ করছি না, বুঝতে পারছি কপিরাইট ফাইট দিলে আমার ঝামেলা হয়ে যাবে, আর এক ঝামেলা হবে কোনি। এখানে ব্লগার বা বাবু টাবু অনেক বড় বড় ব্লগাররা এসেছে, ঠিক আছে, গিয়ে দেখা করতে ইচ্ছে করে, যাকে দেখে নিয়েছি অন্যরকম ভেবো না, জাজ করো না ভালো, ইমোশনটা বুঝে নিও। আজকে দিনটা ওনার, আজকে অন্য কারোর পুজো হবে না। भाई 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 इस तरफ भाई, आई लव यू भाई, भाई जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दी। हो गया, रुको, एक काम करते हैं, जितने लोगों को जो भी सवाल पूछने आपकी तरफ माइक आ जाएगा, ठीक है? किसको क्या सवाल पूछना है? क्योंकि रमजान से पहले हम प्लान कर रहे थे कि थाईलैंड जाके आए, फिर हम सोच रहे थे कि रशिया जाए, फिर सोच रहे थे यूरोप जाए, फिर अमेरिका जाए, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा जो भी होगा आपको बता देंगे हम। रशिया का प्लान था, लेकिन अभी रशिया का सीन चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। और इस तरफ से, अभी इस तरफ आपका नेक्स्ट सुपर बाइक कौन सा? R1 ले लूंगे वापस, चलाऊंगा कहाँ पर? मुंबई में जगह नहीं चलाने की। छोटा कार नेक्स्ट कौन सा होगा? आप बोले टाटा मैं तो ले लूं क्या? अभी कोई सोचा नहीं है प्लान, मैं कोई भी कार बाइक लेने के बारे में सोचा नहीं हूँ मैं, बट जब बर्थडे आएगा तो तब थोड़ा सा, जब बर्थडे आने लगेगा ना तब डिसाइड करना चालू करूंगा। अभी तो फिलहाल डिसाइड नहीं किया। मैं कभी भी किसी को रिप्लाई देना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, तो दो फर्क है इसमें,
है ना। आप अगर देखोगे मैं कंटेंट बनाते रहता हूँ, कभी कभार कमेंट पढ़ने का टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आप खुद कैलकुलेट करना कि एक कमेंट को रिप्लाई देने में अगर मुझे 30 सेकंड लगते हैं तो जितने कमेंट्स आते हैं और मेरे को डीएम भी बहुत आते हैं, तो कैलकुलेट करके देखना कि मेरे एक दिन में कितना टाइम जाता है। तो आप चाहते हैं कि मैं सबके कमेंट रिप्लाई दूं और डीएम का रिप्लाई दूं या कंटेंट बनाऊं? ब्लॉग चाहिए ना, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है आएगा, सबके पास आएगा, हमारे पास बहुत टाइम है, मैं टाइम निकाल के आया हूँ आपके साथ। हम लोगों को सबका लाइफ में एक्सपेक्टेशन है, आप इतना सक्सेस अचीव किया, मतलब यहाँ पे जितना भी है सबको जो चाहिए लाइफ वो आपके पास है। आपको अभी फीलिंग मैंने काम करना शुरू किया था जब मैं मेरे ख्याल से 12 साल का रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने आपको मेरी स्टोरी पता है तो मैंने शुरू किया था टेलर के काम से। हाँ पता है। अच्छा, बहुत टाइम उसके बाद एक वीडियो भी नहीं छोड़ा, एक वीडियो भी नहीं छोड़ा, इवन मैं एग्जाम हॉल में बैठ के वीडियो भी मेरे को जो जिंदगी में चाहिए था ना वो मैंने बहुत पहले अचीव कर लिया था, यूट्यूब से पहले ही कर लिया था मैंने। मतलब वो मैंने पहले भी कहा था, वापस एक बार मैं कहता हूँ, देखो अपने को जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, अपने को जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, अपने को उतना ही पैसा चाहिए जिससे अपनी ख्वाहिश हो। और अपनी ख्वाहिश बड़ी है तो क्या करें। जब मैं 21 साल का था तब मैंने सारा जो चीज चाहिए था वो कर लिया। मतलब 7-8 साल की मेहनत थी, जिसमें मुंबई में घर चाहिए था ले लिया, R1 चाहिए था ले लिया, गाड़ी चाहिए था ले लिया, मेरे को एप्पल के सारे प्रोडक्ट चाहिए थे, मतलब लैपटॉप से लेकर मोबाइल से लेकर आईपैड सब मैंने ले लिया था। तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी सारी ख्वाहिशें, क्योंकि देखो इंसान को अगर कुछ करना होता है ना तो उसके पास उस वक्त जो है वो उसी से जुगाड़ करके अपनी लाइफ में वो कर लेता है। तो मैंने कर लिया था। उसके 21 साल के बाद फिर एक लाइफ मेरी शुरू हुई कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में करना है। तो मैं बस जो पैसे कमाए थे थोड़े थोड़े करके उड़ा रहा था मैं तो मैंने अपनी लाइफ जिया है, ठीक है, मतलब मैं दिखाता नहीं हूँ उतना, लेकिन जिया मैंने लाइफ अपनी। और फिर जब मैंने YouTube ज्वाइन किया तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मेरा YouTube में आने का ये मकसद नहीं था कि मैं नंबर बढ़ाऊँ या पैसे कमाऊँ या फेम कमाऊँ। मेरा ऐसा था कि ज़िंदगी में सीखना है। उस टाइम पे मैं एक्टिंग करता था, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं एक्टर बनूँ, उसके लिए मुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो मैं एक्टिंग सीखने जब गया था तो मेरे को समझ में आया कि मेरे अंदर जो कमज़ोरी है वो ये कि मैं कैमरे के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ। आज तो थोड़ा बात अलग है, लेकिन उस वक्त वैसा नहीं था। तो जो भी आपकी लाइफ में कमज़ोरी है ना, मैंने ये चीज़ अपने आप से रियलाइज़ की है कि जो आपकी कमज़ोरी होती है, अगर आप जो आपकी कमज़ोरी होती है ना उसके ऊपर काम करो, उसको स्ट्रेंथन करने में काम करो, फिर देखना वही आपकी कामयाबी का जरिया बन जाएगा। तो तो मेरे को कैमरे के सामने अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को याद है एक मुझे ऐड मिला था, बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ ऐड था वो। उस ऐड में जो लीड एक्टर था ना वो आया नहीं, तो मेरे को चांस मिला लीड बनने का। और उसमें जो डायलॉग थे वो सब तमिल में थे, और मैं तमिल में रट्टा मार रहा हूँ पूरा डायलॉग। ये वो ऐड की बात नहीं है, दूसरा ऐड है, ये ऐड कभी आया ही नहीं। तो मैंने आधा 1 घंटा मुझे मिला, मैं प्रॉपर रट्टा मारा, लेकिन वो कैमरा इतना बड़ा था, मतलब इतना ह्यूज, मतलब समझ लो ये माइक जितना बड़ा कैमरा होगा वो, और इतना सेटअप, और कैमरे के पीछे 100-150 लोग, और एकदम लाइट वाइट तुम पे पड़ रही है और तुम अकेले कैमरे के सामने तुम्हें डायलॉग बोलना है। अरे बहुत गलत करा मैं एकदम शिवर कर रहा था। और मैंने कितना रीटेक किया पता है आपको? कम से कम 18 से 19 रीटेक हुआ है। फिर वो डायलॉग, वो जो डायरेक्टर था ना वो इतना गुस्सा हुआ मेरे से, उसके बाद उस डायरेक्टर ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया। उस टाइम मैंने रियलाइज किया है कि कैमरे के सामने जो डर लगता है ना, अगर वो डर हट जाए तो शायद मैं एक्टिंग अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर जब मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, तब मैंने सोचा कि ये एक जरिया है जिससे कैमरे के सामने मैं बात करते करते
थोड़ा सा एकदम फ्लुएंट हो जाऊंगा, फिर जाके मैं एक्टिंग करूंगा, फिर मैं सबकी वाट लगाऊंगा। फिर जब मैं YouTube में आया तो फिर वापस एक्टिंग करने गया ही नहीं, मैं यहाँ का ही हो गया। फिर मैं व्लॉग ही बनाने लगा, आप लोगों ने प्यार दिया, फिर उसी से फिर और व्लॉग बनाते गया। आपको पता है पहले मैं एक हफ्ते में एक व्लॉग डालता था, वो भी फ्राइडे के दिन जब सबकी मूवी रिलीज होती है। मैं बोलता था मैं भी अपनी मूवी रिलीज करूंगा फ्राइडे के दिन। तो ऐसे करके हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। फिर आप लोगों ने प्यार दिया तो हफ्ते में 2, फिर हफ्ते में 3, फिर एक दिन में 1 व्लॉग, फिर एक दिन में 2 व्लॉग, फिर एक दिन में 3 व्लॉग, ये भी हमने किया। लेकिन जितने भी मैंने काम किए वो कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब बीच में नहीं मन किया है, ठीक है ना, ब्रेक ले लेते क्या होगा, ठीक है। तो अगर जैसे काफी लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि YouTube पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाना चाहते हो? मेरे को नहीं पता मेरे को नहीं पता कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। मैंने बस अपनी लाइफ जीने पे ध्यान दिया, अपने आप को इंप्रूव करने में ध्यान दिया, और हमेशा मैंने कोशिश किया है कि मैं लाइफ से सीखूं, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये जो सीखने वाला एटीट्यूड है वो कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, चाहे कुछ भी सीखो। अभी जो हमने इंडियन हेरिटेज सागर ट्रिप निकाला था, अपना ड्रीम ट्रिप टूटा हुआ, आपको पता है उस ड्रीम ट्रिप की वजह से मैंने कितना कुछ सीखा है, भारतीय संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, लोग प्लेसेस के बारे में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फिर डेक्कन प्लाटो, बहुत कुछ सीखा। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। पहले हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को, बहुत मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में भी, ठीक है। दूसरा सवाल, देखो हमेशा से जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ना, मैं बिलीव करता हूँ कि आपको उस पे ही सीखना चाहिए। यूट्यूब पे आप यूट्यूब का भी मतलब यूट्यूब से भी सीख सकते हो। मैंने जो ब्लॉगिंग किया हुआ था वो ब्लॉगिंग तो सारा मैंने यूट्यूब से ही सीखा, एडिटिंग भी पूरा मैंने यूट्यूब से सीखा। फर्स्ट ब्लॉग एडिट करने में मुझे 3 दिन 3 रात लगे थे, फर्स्ट ब्लॉग एडिट करने में। तो उसकी भी कहानी ऐसी थी कि मेरा एक दोस्त, जब मैं फिल्म मेकिंग कर रहा था तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो एडिटिंग करते थे, उनको मैंने बोला एडिटिंग करना है, और साथ में बोला कि 1000 रुपये भी दूंगा। तो एक बंदे ने बोला कि नहीं 1000 रुपये बहुत कम है, तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर दूसरे दोस्त को बोला, उसने बोला कि करके दूंगा, बट मैं 3 दिन बहुत बिजी हूँ। मैंने बोला यार 3 दिन तो रुक नहीं सकता। फिर एक को बोला, तो उसने बोला 1 हफ्ते बाद। मैंने बोला एक काम करते हैं, सीख ही लेते हैं, कितना टफ होगा ये। तो फिर मैं एडिटिंग सीखी। तो यूट्यूब पे अगर कुछ करना हो, ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। बट अगर फिल्म मेकिंग करनी है, बड़े बड़े फिल्म बनाने हैं आपको, जेम्स कैमरॉन जैसे अवतार मूवी बनानी है, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा, अच्छे फिल्म स्कूल में जाके सीखना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्कूल भी है, मैं जिस एक्टिंग स्कूल से सीखा था वो छोटा स्कूल था, बट उसमें कैसा था कि सारे स्टूडेंट्स थे, एक्टर्स थे, एडिटर्स थे, साउंड डिजाइनर थे, फिल्म मेकर्स थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, तो सब लोग वहीं पर ही थे, और सबका एक प्रोजेक्ट होता था कि सबको मिलकर एक फिल्म बनानी है। तो इस तरह से मैं सारा सीख गया। तो मेरा काम क्या था कि मैं एक्टिंग करता था, बट लेकिन मैंने एक्टिंग के साथ साथ जो सिनेमेटोग्राफी थी वो भी सीखी। तो अब वो मूवी ना 3 इडियट्स, कि वो किसी और के क्लास में जाकर बैठ जाता था, उसी तरह मेरा भी था कि भाई अगर मेरे को ये सीखना है तो उसके साथ रहो, उससे पूछते रहो। मैंने तो अपने स्कूल में सबको फ्रेंड जोन कर दिया था, और लाइट दादा से लेकर हर कोई मेरे को जानता था। मेरा ऐसा है कि जब ऐसे मिलता हूँ तो दिल से मिलता हूँ मैं। तो वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जब भी आप किसी से मिलो, बात करो, तो बस अपना बना लो। अभी आपको एडिशन में कितना टाइम लगता है? अभी 1 घंटा लगता है। अभी कहाँ एडिटिंग करता हूँ मैं, अभी एडिटिंग कहाँ करता हूँ मैं, अभी तो सिर्फ बहुत रॉ व्लॉग होता है। So just one question, do you still miss R1? क्या आपके अभी भी R1 को मिस करते हो? हाँ करता हूँ मिस, बस रोड सही हो जाते तो फिर बेचता ही नहीं था मैं। देखो YouTube में अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये सुपर बाइक लूंगा तो मेरा YouTube चैनल चल जाएगा, इस पे व्यूज आएंगे तो ये खरीद लो। मैंने R1 2014 में लिया था, और मैं लद्दाख करने 2012 में पहली बार गया था। तो पहले से मैं चीता था, पहले से ही घूमता करता था, ठीक है। तो अगर मैंने पहले स्पोर्ट्स बाइक लिया है तो इसका मतलब मेरा प्यार पहला स्पोर्ट्स बाइक है। लेकिन थोड़ा समझदार भी हूँ मैं, थोड़ा बढ़िया दिमाग भी है कि अगर स्पोर्ट्स बाइक लूंगा तो खर्चे बहुत होंगे। तो अभी ये सोचना है कि नहीं खर्चे करने का टाइम अभी है, या फिर थोड़ा सा सोच समझ के पैसे डालना है, समझ रहे। बट स्पोर्ट्स बाइक पे फिर वापस ऐसा मन तो कर रहा है लेने का, प्लान चल रहा है, बता दूंगा मैं। थैंक यू।
या इनको दे दो यार, काफी टाइम से हाथ करेंगे यहाँ पर। अरे सब हरामी हो। गार्डन हो गया। देखो जागीर भाई ने सिखाया शक्ति, ठीक है, शक्ति शक्ति। हम सब लौटा के खाए हैं, बताइए मजाक कर रहे हैं। आप बोलिए नहीं तो रुकेंगे नहीं। आवाज आती ऐसा होता है, क्या करें। मेरा कंसर्न आपको लेकर नहीं था, वो बंदे पीछे वाला जो है सिंगल है ये, लेके जाओ इसको। मुझे बहुत कम दिखता है। दिखता तो है। अभी ब्लॉग में तो आज ज्यादा क्यूट लग रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। अरे वाह, देखो आप सिंगल हो। चलो कोई नहीं, आजा नेक्स्ट टाइम। फिर से दिल टूट गया बेचारे का। एक बार हमारी तारीफ कर, तारीफ करें, कैमरा चालू करने नहीं बोला। मुझे बहुत पसंद है 2019 में, ब्रो है स्पेशल। यार अभी भी उठा, शफीक चाय लेके आया। शफीक भाई के छोटे भाई। देखो हम सब तो चाय नहीं पी सकते, लेकिन मैं चाय पी रहा हूँ तो आप समझ लेना कि आपने चाय पी है। चाय की चुस्की। Cheers, बाबा। Cheers, cheers to कोलकाता। उनके साथ एक वीडियो कॉल करते हैं। अगर उठाए तो ठीक है। चीते के साथ डायरेक्ट फोन मेरे दोस्त मेरे फोन नहीं उठा रहे। भाई पंचोत एक लास्ट कॉल करूंगा। अगर ये भी नहीं उठाया तो फिर तो बदनाम हो जाऊंगा। तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी खतरनाक है। क्या ओके ओके बाय। ठीक है खुश अभी। और बताइए सर, सीखा है आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाओ, लोग आपसे भी सीखना चाहिए। तो ये जो सिलसिला है इंस्पिरेशन वाला, ये चलते रहना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप डालो, डेली व्लॉग करो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, बाकी कारवा बनते जाएगा। कि लोग क्या कहेंगे, लोग कमेंट क्या करेंगे,
लोग क्या बातें करेंगे, लोग जज करेंगे, क्योंकि आप अगर ब्लॉग करते हो ना तो आपके पीछे घर पे क्या दिख रहा है, आपके कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, ये सब लोग जज करते हैं। तो मेरे को ये था कि लोग जज करेंगे, लोग बोलेंगे, तो सबसे बड़ा डर वो था। लेकिन आप ब्लॉगिंग तो मैंने मेरे ख्याल से 2016 के एंडिंग में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मैं घूमने तो जाता था। मैं लद्दाख गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं महाबलेश्वर गया, गोवा गया, यहाँ पर जा के मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शूट किए थे, बहुत ऐसे थोड़ा करके करे थे मैंने, लेकिन कभी अपलोड नहीं किया था, यही सोच के कह रहे यार लोग जज करेंगे कि क्या है। लेकिन वो जब दिमाग से निकल गया, फिर जब डाला मैंने ये पहला वीडियो, और जब उसमें नेगेटिव कमेंट्स आया ना, वो बहुत हिट किया, मतलब यार क्या बात कर रहे हैं लोग, है ना। बस वो शुरू में होता है, फिर एक बार आप पत्थर के बन जाते हो, पत्थर के सनम, उसके बाद आपको कुछ कोई नहीं कर सकता। तो अभी है कि लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको भी ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते, लोग जब नेगेटिव बातें करते हैं उसको भी नहीं चढ़ाते सर पे। तो ये चीज़ आप रखो, और वो पहला वीडियो जब एक बार डाल दोगे ना, उसके बाद फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगे, धीरे धीरे करते रहो। और स्पेशली लड़कियों को ना बहुत गंदे कमेंट आते हैं, तो इग्नोर करो। वहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसे गंदे कमेंट कर रहा है ना, तो इसको आप हाइड कर दो, फिर वो जिंदगी भर कमेंट करते रहेगा और आप तक नहीं पहुँचेगा कमेंट। तो वो भी चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच सर आपके सजेशन के लिए, थैंक यू। तो हमारे पास ना अभी हम थोड़ा Q&A सेशन को एंड करके आप पूछ एक आखिरी सवाल पूछिए। नहीं ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा, भीड़ भाड़ हो गई तो वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे लाइन से सब लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग पहले आए हैं, तो आप लोग को पहले सेल्फी का होगा। একটা ক্যামেরা এই যে, আর একটা ক্যামেরা রেডি করে বসে রয়েছি, ঠিক আছে। কেক কাটা হবে এবার, সেটা দেখবো। ठीक है, तो हमारा केक आ चुका है। आपको केक दिखेगा नहीं, आप लोग सब ब्लॉग में देख लेना केक कैसा दिख रहा है। ओके आर्या, ब्लॉग में केक वैसे का वैसे ही आना चाहिए। किधर गया? अरे लगा ना केक। अभी हम सेल्फी खींच सकते हैं, बट ध्यान में रखना है कि फटाफट आपको आना है, खींचना और जाना है, क्योंकि सबको सेल्फी देगा, ठीक है। আমার হাত পা কাঁপছে, আমি ওনার সাথে ফটো তুলবো ভাই। এক্সাইটেড। আমি এই ক্যামেরাটা বন্ধ করবো না, আর এর অ্যাপেলের ফোন আছে, হাইওয়ে ব্যবহার বন্ধুত্ব করে নিয়েছি। তো ভাই ফটোটা তুলতে দেবে তো? অবশ্যই, ঠিক আছে। আমরা 3-4 জনে একটা ফোনেই তুলবো, ঠিক আছে। স্টেজে গিয়ে ক্যামেরা অন করছি, ঠিক আছে। আমি স্বপ্ন দেখছি, আর আমি চিমনি কাটবো। কোথায় চিমনি কাটবো? নাকে, মুখে। हेलो हेलो कैसे हैं? अच्छे से, ठीक है। आप ब्लॉग कर रहे हैं? सर ऑन है सर, मैं उसको दे दो कैमरा। ओ क्या तुमको मतलब, हाँ आप देखो और हाँ हमारा ही है। ओ दादा सब्सक्राइब MSK। थैंक यू थैंक यू सो मच, सीखने के लिए थैंक यू, वेलकम भाई। आई डोंट नो মানে রেকর্ড হয়েছে কিনা, বাট আমার হাত কাঁপছে সিরিয়াসলি। জাস্ট দেখলে কি হলো, আমি ভিডিওটা দেখে নিলাম যে এসেছে কিনা, তাই আমি এই কথাগুলো বলছি। আমি ভাবতেই পারি না, আমাকে ওঠাকে বললো যে ভিডিও করা যাবে না, স্যার বারণ করেছেন, মানে MSK ভাই বারণ করেছেন। তো উনি উপজেই বলেন তুমি ব্লগ করছো, শুনলে তো তোমরা। আমি ভেবেছিলাম ব্লগ করা ছেড়ে দেবো, বিকজ ব্লগ ভিউ আসে না, সাবস্ক্রাইবার গেন হয় না। আমার থেকে যারা রাস্তা শুরু করেছে তারা আগে চলে যাচ্ছে, বাট করবো ইয়ার, ও লোক যেন আমাকে চেনে। আমি এটাই চাই যে হ্যাঁ, অনিরুদ্ধ পাল বলে একজন আছে বাংলায় যে ব্লগ করে। ভাই লোক কি এক্সাইটমেন্ট, তোমাদের কী করে বলবো। আমি জীবনে আমি এরকমভাবে কোনোদিন ব্লগ করিনি, এই প্রথম করছি। जब भी ट्रैवल करता हूँ और अगर मेरे को 10 दिन हो जाते हैं, तो
तो मैं क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए वापस घर को जाता हूँ? भैया भैया जो गलत आंसर दिए वो तो आप हाथ खड़े मत करो, आपका तो ऐसे ही चांस नहीं है। ভাই লোক, জীবনে যাই সমস্যা আসুক একসাথে দুটো বা তার বেশি আসে, এটা জানো তো? ঠিক তেমনি সুখ আসলেও একা আসে না, সেও জোট বেঁধে দল বেঁধে আসে। সেটা আমি আজকে জানলাম। কেন? দেখে নাও। माँ का बिरयानी, आपका माँ का बिरयानी। सही है, ये लो। ये लीजिए थैंक यू। थैंक यू। ये हो जाएगा? ठीक है, रेडी हो आप लोग? हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योमा मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक यू। हम ब्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ टुडे। आई विल सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़। लिव लाइफ, ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी ना होगा লাইক আর কিছু চাই না। না ভাই লোক, এই গেঞ্জিতে মানাচ্ছে না, এবার ভালো গেঞ্জি পরতে হবে। দেখলে কেমন দেখাচ্ছে ভাই লোক, কেমন দেখাচ্ছে একটু দেখো। লোগো, সি মাই লোগো, লোগো বেবি। ও মাই গড, ও মাই গড। থ্যাংক ইউ এমএসকে ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস ফর গিফট। একটুখানি মানে ঘড়িটার জন্য একটু লাগছে, আর মোটামুটি ঠিকই আছে। আগের বডি হলে একদম মানিয়ে যেত। যাই হোক, थैंक यू सो मच। हिंदी ते किचु बोलছি एमएसके भैया थैंक यू सो मच कोलकाता आने के लिए, इतना अच्छा मीटअप रखने के लिए एंड हम लोगों के लिए सोचने के लिए थैंक यू। बिकॉज हॉल, ऑडिटोरियम हॉल टोटली एसी था, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर दिस। इसका जो स्मेल है, ये स्मेल बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये स्मेल। ये सिर्फ एक दिन के लिए, ये वीडियो के लिए पहना हूँ एक बार, और एक बार एक फ़ोटोशूट करने का आइडिया है, कुछ चल रहा है दिमाग पे और कुछ नहीं। उसके बाद ये मैं सजा के रख दूँगा होल लाइफ के लिए, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन सब कुछ नहीं बोल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखोगे कि नहीं देखोगे मुझे पता नहीं, और दूसरा लोग भी देखेगा नहीं देखेगा मुझे पता नहीं। इतना बड़ा वीडियो, सबसे बड़ा वीडियो मेरा ही है इसलिए थोड़ा छोड़ देता हूँ। भाई लोग, সুমনের ক্যামেরাটা কি সুন্দর করে রেকর্ডিং করলাম, কি সুন্দর কথা বললাম, ফোকাসই নেইনি। যাই হোক, কথা হচ্ছে ভিডিওটা বড় রেখেছি আই নো, বাট একটা কারণের জন্য রেখেছি। যারা আসবে বলে আসতে পারোনি কলকাতা মিটআপে, আর এমএসকে ভাইকে আমার মতন ভালোবাসো, কাট্টার এমএসকে যারা, তাদের জন্য রেখেছি। যেন তারা বাড়িতে বসে বা যেখানেই আছো সেখানে বসে যেন এটা ফিল না হয় আমি যেতে পারলাম না, ওকে। আর ভিডিওটা আমার ছিল 1 ঘন্টা, সেখান থেকে 30 মিনিট করেছি। তাহলে বাদবাকি ফাইলগুলো গেল কোথায়? চিন্তা নেই বদ্দা হেয়ার্স। তো ডেসক্রিপশানে চলে যাও, একটা লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে সমস্ত A to Z র ফাইল সব রয়েছে উইদাউট কালার গ্রেডিং। ম্যাট একটু আসবে বিকজ সিলগে শ্যুট করা, কালার গ্রেডিং যাই হোক দেখে নিও, ইমোশনটাই তো আসলে দেখে নিও। লাস্ট নট দ্য লিস্ট, আরেকটা কারণের জন্য আমি এই ব্লগটা এত বড় রেখেছি। কাট্টার এমএসকে আমি ইচ অ্যান্ড এভরি ভিডিও দেখি, সব কিছু শিখেছি ওনার কাছ থেকে। সো উনি প্রথমবার আমার শহরে আসলেন, সিটি অফ জয়, সিটি অফ মাই ফ্রিডম, জানো তো, আগে ভিডিও দেখো। আর আমি ভিডিওটা রাখবো না, তোমরা ভালো করে জানো বদ্দা ইমোশনে বাঁচে এবং মুহূর্তে বাঁচে। সো আমি পুরো ভিডিওটাই রাখলাম, যতটা পেরেছি রেখেছি। আর এর থেকেও বেশি কিছু রয়েছে নিচে ডেসক্রিপশানে গুগল ড্রাইভের মধ্যে, চাও আমার মতন ভালোবাসলে অবশ্যই দেখে নিও, কোনো চিন্তা নেই, ফ্রি অফ কস্ট, ঠিক আছে। তাহলে ভাই লোক, টাটা বাই বাই। আজকের মতো এই ব্লগ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জানি না এখানে কে দেখছে, কেউ দেখছে না আমি জানি, বাট আমার বলার কর্তব্য আমি বলে যাই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, ভিডিওটা খারাপ লাগলে ডিসলাইক করে দিও। চ্যানেলে যদি নতুন হও, এই চাঁদ বদন খান যদি প্রথমবার দেখে থাকো, সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে দেওয়া। চয়েস আমার ডিজাইন পুরোটাই তোমার। দেখা হবে পরে একটা ঝাক্কাস ব্লগ নিয়ে। তব তক লিয়ে বাই, বি সেফ, টেক কেয়ার অ্যান্ড জানে সে পহলে কিপ কাম, বি পেশেন্স অ্যান্ড মুহূর্তে বাঁচো ভাই লোক। কী ভেবেছিলে ডু ইউ অনেস্টলি বলবো না, করতে হবে না অনেস্টলি, তোমরাই পস্তাবে, ঠিক আছে। মুহূর্তে বাঁচো ভাই লোক। চলো ভাই, টাট্টু। एमएसके भाई, ये ट्राइपॉड मैंने कल ही लिया और इस ट्राइपॉड पे पहले वीडियो आपका ही वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
ये मेरा नया ट्राइपॉड है, ये मेरा नया लाइट है। ये दोनों ही आपके वीडियो के लिए पहली बार यूज़ हो रहा है। और ये मेरा कैमरा नहीं है, मेरा कैमरा दूसरा है। मेरा ये वाला है, इसका लेंस थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने इससे शूट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कैसा आ रहा है। ये मेरा मेन कैमरा है, यही बात के लिए थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको।